हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। So, Prabhuji, I am very thankful to you that you will be guiding us actually through the initiation procedure. And I'm very, very, I'm very, very grateful to you that you will be guiding our students. With your permission, Prabhuji, can I even record this, procedure so that it will be useful for the others also and they can also take the advantage of this procedure, if you allow? Yeah, yes, Mata ji. We Yeah, can record, no problem. yeah. Thank you, Mata Prabhuji. ji, are you able to see my screen? Yes, yes, we all are able to see your screen, Prabhuji. So this is a very nice song dedicated to Guru Maharaj. So we'll hear, remember the Guru Maharaj first, and then we'll begin Sure. our Yes, 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 sure. discussion. পুষ্ট হইল শীর্ণ ভক্তিল। Voice is coming, Mata ji. Video Yes, voice. yes, 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 Prabhuji. We Okay, are okay. able to hear, Prabhuji. সাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভক্তি লতিকা। জনমে জনমে মোর গুরুদেব রহে যেন শ্রীল জয় পতাকা। যাহার প্রসাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভক্তি লতিকা। জনমে জনমে মোর গুরুদেব রহে যেন শ্রীল জয় পতাকা। আ, আ, শ্রীল প্রভুপাদ তব প্রাণধান তুমি তার কৃপা বর্তিকা। হৃদয় আকাশে প্রেমের বাতাসে সদা রহ শ্রীল জয় পতাকা। পরম দয়াল গুরু মহারাজ পতিত পাবন হেতু পদনা কষ্ট সহন করিলে শীত তাপ ছয় ঋতু। যাহার প্রসাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভাতি লতিকা। জনমে জনমে মোর গুরুদেব রহে যেন শ্রীল জয় পতাকা। আ, 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 ধনী দরিদ্রে ভেদ ভাব নাই উদার চির অবতার। শিবের মতো পান করেছ জীবের পাতক গড়ল ভার। গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া হুঙ্কার দিলে তুমি। তব হুঙ্কারে ভব ভয় যায় তোমার চরণে নমি। যাহার প্রসাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভাতি লতিকা। জনমে
जय पताका आ, आ, भयाले जगत दुःख क्लेश भरा नाय सुख बहे मृत्युर धारा अमृतेर खोज एने दिले नाथ তোমার পাবন নির্দেশিকা ভূভারতে যত পাপী তাপী ছিল তব কৃপাতে উদ্ধার। हे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो हर्ष प्रभु जो है नासिक के हैं, और अभी अभी हर्ष प्रभु ने जो है, हमारा बहुत सौभाग्य एक्चुअली, हर्ष प्रभु ने ना बिल्कुल 1 घंटे पहले हमको एक कंफर्मेशन दिया कि वो परम पूज्य जय पताका महाराज जी से या किसी भी महाराज जी से अगर आपको दीक्षा प्राप्त करनी है तो आप किस तरह से ये दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, दीक्षा से कौन से प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारा जो है हमें हिज ग्रेस हर्ष प्रभु जो है वो समझाएंगे। प्रभु जी थोड़ा हिंदी में आपको बोलना पड़ेगा कि आई हैव सम स्पीकर्स जो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, बहुत डीप डिटेल्स में नहीं समझ पाएंगे, तो हिंदी में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा प्रभु जी। यस माता जी, हम प्रभु जी ओवर टू यू, मैं आपको ना जरा स्पॉटलाइट पे डालती हूँ प्रभु जी। ओके ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you, Mataji, for giving this opportunity to talk with the devotees. Mataji, how many devotees are aspiring or shelter from His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj? Can you tell? Mataji, you are mute. Your mic is mute. Prabhuji, at least 3 to 4 devotees are there. And some devotees, if they are not, they will start aspiring, Prabhuji, by your mercy. Okay, okay, Mataji. So, Mataji, can I talk with those devotees who are aspiring, or can they on their camera? Priyanka wouldn't be able to switch on her video. She's in Okay, office, Prabhuji. And Nishita has okay, some okay, issue okay, in the house. So okay, they okay. might not be No, able to. no problem, Mataji. Mataji, first I want to ask you, all those devotees have got confirmation of aspiring and shelter from JPS office Mayapur? Yes, yes, yes. All devotees have got? Mostly, but if you want, you can fill for the other devotees who have not got, you can actually repeat that procedure. आप वो procedure बोल सकते हैं। Okay, okay. From the beginning itself, we हाँ, can मतलब पूरा discuss. स्क्रैच से कि शेल्टर भी कैसा लेना है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी से या किसी Yes, गुरु से, है ना। yes, Mataji. तो मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बताऊंगा। 16 अक्टूबर
2022 16 अक्टूबर 2022 को गुरु महाराज मुंबई आए थे कार्तिक में दीक्षा देने के लिए। तब हमने एस्पायरिंग का फॉर्म भरा था। तो एस्पायरिंग का फॉर्म भरने के समय हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, जैसा नाम, हम कौन से टेम्पल से एसोसिएटेड है, हमारी टेम्पल अथॉरिटीज कौन है, उनका साइन वगैरह, हमें साइन और स्टैंप लगता है टेम्पल से एस्पायरिंग के फॉर्म पे। और ये इनिशिएशन के प्रोसेस का सबसे बड़ा फैक्टर है कि गुरु महाराज के ऑफिस में जो डेटाबेस होता है वहाँ आपका नाम होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है, हम एस्पायरिंग का फॉर्म ना भरते हुए सीधा शेल्टर का फॉर्म भर देते हैं, तो फिर हमें कहा जाता है कि आप एस्पायरिंग भरिए फिर शेल्टर का भरिए। तो इसकी वजह से सबसे पहला स्टेप है कि हमें एस्पायरिंग का फॉर्म भरना होता है। उसके बाद मतलब ये एस्पायरिंग का फॉर्म हम जब भरते हैं तो जनरली ये जीबीसी गाइडलाइन है और गुरु महाराज के भी इंस्ट्रक्शंस है कि 6 महीना वेटिंग पीरियड होता है। एस्पायरिंग फॉर्म भरने के बाद हमें 6 महीना हमारे अथॉरिटीज को हमारी लॉयल्टी बतानी होती है कि हम क्या साधना कर रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं कि नहीं, 16 माला ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, हमें हमारी अथॉरिटीज को हमारे सिंसियर एफर्ट्स के थ्रू प्रूव करना होता है। ये मिनिमम है 6 महीना। अगर हमारे टेम्पल अथॉरिटीज को लगता है कि हम अभी शेल्टर लेने की स्थिति में नहीं है, तो टेम्पल अथॉरिटीज डिसाइड कर सकते हैं कि वो हमारा पीरियड 6 महीने से भी आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे केस में क्या हुआ, मैं 16 अक्टूबर 2022 जैसा बताया कि शेल्टर लिया, एस्पायरिंग लिया, तो मेरा थोड़ा साधना ठीक नहीं था और मैं वो स्थिति में नहीं था कि शेल्टर ले सकूं। तो मेरे टेम्पल अथॉरिटीज ने मुझे 3 साल वेट करवाया शेल्टर लेने के लिए। मैं 3 साल वेट किया वो शेल्टर लेने के लिए। यस 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 यस। तो सो मुझे 3 साल का वेट करवाया मेरे टेम्पल अथॉरिटीज ने शेल्टर लेने के लिए। और 24 अक्टूबर को लास्ट ईयर 2024 में हमने मतलब 2 ढाई साल रफली तो शेल्टर का फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अगर गुरु महाराज हमारे आसपास कई सिटीज में आ रहे हैं, अगर वहाँ कोई इनिशिएशन सेरेमनी होता है तो वहाँ हम जाके हमें शेल्टर दिलवाया जाता है, या जो ऑनलाइन भी हम शेल्टर ले सकते हैं। मेरे केस में हमने अक्टूबर में फॉर्म फिलअप किया था, तो उसके बाद शेल्टर सेरेमनी होता है दिसंबर एंडिंग को। तो शेल्टर सेरेमनी होने के लिए भी हम 2 महीना वेट वगैरह किया था। और फिर शेल्टर सेरेमनी होने के बाद अगेन जीबीसी गाइडलाइन है, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन है कि आपको मिनिमम वेट पीरियड 6 महीना है। अगर हम एस्पायरिंग ले चुके हैं और अगर 6 महीना पूरा नहीं हुआ तो हमारा शेल्टर का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है जनरली। और शेल्टर का फॉर्म मतलब अगर हमें शेल्टर लेना है तो एस्पायरिंग के बाद मिनिमम 6 महीना। अगर इनिशिएशन के लिए अप्लाई करना है तो शेल्टर मिलने के बाद 6 महीना ये मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है। और उसके बाद हम जब इनिशिएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर ड्यूटीज ने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे पेजेस है। उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, हमारी पर्सनल इंस्ट्रक्शन भरनी होती है, और एक फिलोसॉफिकल टेस्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। और वो 20 क्वेश्चंस का हमें आंसर एज अ एग्जाम हमें लिखना होता है 3-4 घंटे में। और हम हमारे टेम्पल अथॉरिटीज के गाइडेंस में ही लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे टेम्पल अथॉरिटीज उसको चेक करेंगे और वो आउट ऑफ 100 हमें ग्रेडिंग देंगे। तो मिनिमम पासिंग मार्क 65, 70 मार्क्स, मिनिमम 65 मार्क्स होना उसके लिए जरूरी है। तो उसके बाद फिर हम दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 20 क्वेश्चंस है ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैं अभी इसका स्लाइड तो नहीं बना सका लास्ट मोमेंट पे। तो 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, मैं पीडीएफ बना के माता जी को भेज दूंगा। माता जी आपके साथ शेयर करेंगी। फिर हम जब इनिशिएशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके 2 से 3 वीक के अंदर हमारा इनिशिएशन इंटरव्यू शेड्यूल्ड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चंस में अ, बताता हूँ सबको।
जस्ट पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जस्ट एक मिनट में वो पीडीएफ खोलता हूँ। तो ये वो क्वेश्चनेयर है जो एक हमारा एस्कॉन मैंगलोर का जो टेम्पल है, उन्होंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है कि जिनको हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज से इनिशिएशन लेना है, तो उनके लिए कोर्स 30 सेशन का एक कोर्स है। तो उसमें ये सब क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। वो कोर्स इंग्लिश में है, वो 30 लेक्चर्स का। तो ये उसमें सब ये क्वेश्चन मैं ट्रांसलेट किया हूँ और उसका एक कंपाइलेशन बनाया है कि मिनिमम इतनी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए अगर हम इनिशिएशन इंटरव्यू के लिए अपियर कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम इतनी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये एक पीडीएफ बना है, ये भी आप सब डिवोटीज के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अ, उसमें एस्कॉन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, गुरु और गुरु तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, गुरु परंपरा में शिल प्रभुपाद हमारे, फिर षड गोस्वामी प्रभुगण पंचतत्व। कुछ क्वेश्चंस भगवत गीता से पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो से पूछते हैं, फिर शिल प्रभुपाद लीलामृत है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, भक्ति रसामृत सिंधु है। इन बुक से सब क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। और एज अ टेम्पल अथॉरिटी कृष्ण रूपा माता जी आपको अ, मतलब शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू गिव यू रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द टेम्पल कि एज यूर शिक्षा गुरु या यूर टेम्पल अथॉरिटी माता जी का साइन होना जरूरी है रिकमेंडेशन लेटर पे। और उसके बाद जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, हम अभी एनवीसीसी के डिवोटीज है मोस्टली, तो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रभु जी का सिग्नेचर स्टैंप हमें लगेगा उसके लिए। तो ये जनरली ये मैंने ओवरव्यू बताया है, केस टू केस वेरी करता है। अभी प्रभु जी इसके लिए थोड़ा मतलब वो जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा अलग इंफॉर्मेशन भरना पड़ता है। मतलब जिनका शादी नहीं हुआ है, जो अनमैरिड है, उनके लिए थोड़ा अलग फॉर्म, मतलब कुछ एक दो पेजेस अलग भरने पड़ते हैं कि जो डिवोटीज मैरिड है उनके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म में फिलअप वगैरह करनी होती है। तो इस तरीके से एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। अगर जब हम डिवोटीज मतलब इस हमारे फैमिली में से जो जो भी डिवोटीज अप्लाई करेंगे, तो हम केस टू केस सबको हेल्प करेंगे। मतलब फॉर्म भरने से लेकर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराने तक स्टेप बाय स्टेप कहाँ किसको कांटेक्ट करना है, किसको मेल करना है, किसको फोन करना है, सब बता देंगे। सो माता जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डिवोटी हैव एनी क्वेश्चंस, वी कैन टेक क्वेश्चंस। प्रभु जी ये सारा अभी ऑनलाइन ही होने वाला है ना? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रही थी, मैं एक्चुअली मैंने लिस्ट भी बना दिया एक्चुअली, कि अभी हम्म। ये जो एस्पायरिंग फॉर्म हम्म। है ना, तो ये एस्पायरिंग फॉर्म आप हमें प्रोवाइड करेंगे या वो लिंक प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे ये एस्पायरिंग फॉर्म हमें भरना है हाँ और हाँ अपलोड माता जी, करना देखिए कैसा है कि एस्पायरिंग फॉर्म हमें ऑनलाइन नहीं भरना होता है। कि है? गुरु महाराज की वेबसाइट है हम्म। jayapataka.swami.com, उस पे सब फॉर्म दिए हुए हैं। तो वो हमें ओके। डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है। फर्स्ट स्टेप प्रिंट आउट लेना है, उसको फिलअप करना है, हमारा फोटो लगाना है, टेम्पल का स्टैम्प चाहिए। हम्म। शिक्षा गुरु या हमारी जो टेम्पल अथॉरिटीज है, अभी हमारे इस फैमिली में यू आर द अथॉरिटी माता जी, सो आपको अपना साइन एज अ परमिशन के रूप में देना होगा। उसके बाद टेम्पल अथॉरिटी के रूप में राधेश्याम प्रभु जी से आपको साइन वगैरह लेना पड़ेगा डिवोटीज के लिए। तो एस्पायरिंग फॉर्म फिर हम मायापुर ऑफिस का जो मेल आईडी है, मैं वो मेल आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा, किस पे मेल आईडी भेजना है, ओके। कौन से मेल आईडी पे भेजना है। तो उस पे हमें भेजना होता है माता जी। और जैसे कि सबको पता है कि गुरु महाराज हैज थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ इनिशिएटेड डिसाइपल्स ऑलरेडी, एंड मेनी मोर थाउजेंड डिवोटीज आर वेटिंग। सो एस्पायरिंग फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ा चीज है हमें फॉलोअप लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ डिवोटीज है ना, तो कभी कभी हमारा एप्लीकेशन वो उनके ध्यान में नहीं मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें, अगर समझो हम आज हमारा एस्पायरिंग फॉर्म भर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक आज ट्यूसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे हमको उनको मेल करना है कि मैंने सो एंड सो डेट पे
सो एंड सो टेम्पल अथॉरिटीज से फॉर्म भेजा था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन, ये हमें पूछना होता है उनको। अभी मैं 24 मई को भेजा था, 24 मई 2025 को मेरा इनिशिएशन का रिकमेंडेशन भेजा था। तो मुझे कहा गया था, मतलब मुझे एक हफ्ते में रिप्लाई आ गया था कि विद इन 2 और 3 वीक्स आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। लेकिन हुआ क्या, मैं 2-3 वीक्स रहा देखा, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ। तो हमें उसके लिए फॉलोअप लेना होता है। अगर हम फॉलोअप नहीं लेते तो प्रोसेस उतना ज़्यादा डिले होता जाएगा, बिकॉज सो मेनी डिवोटीज आर इन स्टिल क्यू टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज। तो जो भी कुछ फॉर्म्स है माता जी, गुरु महाराज की जो वेबसाइट है jayapatakaSwami.com, उस पे अवेलेबल है। वो हमें डाउनलोड करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमें वेबसाइट पे भरना है, वो प्रोसीजर नहीं होता है। हाँ, डाउनलोड करके ही। हमको वो फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना है, फिलअप करना है प्रॉपरली, टेम्पल अथॉरिटीज का साइन एंड सिग्नेचर लेना है। उसके बाद हम जेपीएस ऑफिस मायापुर को भेज सकते हैं। फिर विद इन 1 और 2 वीक्स हमको वो जस्ट 1 मिनट माता जी। या सो वो वेबसाइट से हमें फॉर्म डाउनलोड करना होता है, और वो भरने के बाद हमारे टेम्पल अथॉरिटीज उसको चेक वगैरह करती है। उसके बाद फिर 1 से 2 वीक में हमको, 1 वीक में ही मेल आ जाता है कि वी हैव नोटेड योर इंफॉर्मेशन एंड विल स्टार्ट द नेसेसरी प्रोसीजर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये होता है मतलब जी। ओके। And then I think whenever Maharaj will give initiation to the in that particular local temple, और या थोड़ा लोकल टेम्पल से भी नजदीक, जैसे हम लोग पूना रह रहे, अगर महाराज बम्बई में भी दे रहे हैं तो हम लोग बम्बई में भी जाके दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा भी है? यस माता जी, ले सकते हैं। अभी जैसे कि आपको पता होगा, इस मंथ में 8 जुलाई को गुरु महाराज आने वाले थे मुंबई, हाँ, लेकिन उनकी सभी को हेल्थ खराब हो गई, मैं वही एक्चुअली हाँ देख रही थी उनके टेलीग्राम पे। हाँ। तो उनका हेल्थ ठीक नहीं हुआ, वो कोलकाता में एडमिट थे 6 दिनों के लिए। 6 दिनों में उनका 4 या 5 बार डायलिसिस हुआ डेली बेसिस पे। फिर हेल्थ फोरम ने डिसीजन लिया कि ये सिचुएशन में ट्रैवल करना उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से जैसे ही गुरु महाराज डिस्चार्ज हुए, एक दिन रुके कोलकाता में और अभी मायापुर गए हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमने हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो जो डिवोटीज को लेना है मुंबई में इनिशिएशन गुरु महाराज से, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। जय पताका स्वामी शिष्य समूह मुंबई से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। हम सबसे गूगल फॉर्म भी भरवा लिया था कि दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोसीजर और मुंबई गुरु महाराज की मुंबई यात्रा में दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो सब प्रोसीजर रेडी करके रखा गया था। तो वहां से हमें कम्युनिकेशन मिला है कि स्टिल होप इज ऑन। गुरु महाराज ने कहा है कि मैं मुंबई आना चाहता हूँ। तो अ, अभी हम डिवोटीज राह देख रहे हैं कि गुरु महाराज की जो हेल्थ है वो एक स्टेबल स्टेज पर आ जाए, ताकि वो ट्रेवल कर सके। शायद ज्यादा लोगों को मतलब पता ही होगा या नहीं भी होगा कि गुरु महाराज को यूएस भी ट्रेवल करना है प्रीचिंग के लिए। तो गुरु महाराज पहले मुंबई आना चाहते हैं, भक्तों को मिलना चाहते हैं, दीक्षा देना चाहते हैं। फिर मुंबई से शायद अगर उनका हेल्थ ठीक रहा तो यूएस भी जाएंगे प्रीचिंग के लिए माता जी। तो ऐसा है कि हमारा आसपास कहीं होता है हम जा सकते हैं। अदरवाइज हमको पूछा जाता है, मतलब अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं जेपीएस ऑफिस मायापुर में, तो वो हमें बताते हैं कि इस जगह पर इनिशिएशन सेरेमनी। अब अगर समझो कहीं साउथ इंडिया में है या मायापुर में है, तो हमको बताते हैं। अगर हम हमारा कंफर्मेशन देते हैं तो वी कैन गो देयर एंड टेक इनिशिएशन देयर ऑल्सो। तो दिस इज द प्रोसीजर माता जी। ओह, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। किसी और को ये कोई प्रश्न पूछना है? निशिता, प्रियंका, रेखा माता जी, अभिलाषा माता जी, या मधुरा माता जी, ब्रजेश प्रभु, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी, माता जी, आई एम फ्रॉम पूना center, Chakan center, and I हम्म, also come to NVCC. So हम्म। I finished my IDC exam maybe 2-3 months ago. So now I don't know exactly what procedure should I follow, like for the initiation.
माता जी, you are aspiring from whom? I am connected to Chakan Center. Kailash Chandra Prabhu is there. नाही नाही, तुम्ही दीक्षा कोणाकडनं घेणार वो कोणाकडनं दीक्षा घ्यायची? माताजी ते मला वाटलं की तुम्ही सांगणार तसं करायचं. मला राधानाथ स्वामींकडून घ्यायची इच्छा आहे. अच्छा अच्छा, ठीक आहे ठीक तर आहे. तिकडे थोडी प्रोसिजर वेगळी आहे माताजी, हा माताजी, ती ओके. प्रोसिजर आहे ना, राधानाथ महाराजांची जी प्रोसिजर आहे ना, वेगळी आहे थोडी. ती मला पूर्ण माहिती आहे काय आहे ती. तर कारण की मी राधानाथ महाराजांची सुद्धा ऑफिशियल काउन्सिलर आहे. तर हा ते माताजी. मला पूर्ण प्रोसिजर सांगते मग मी तुम्हाला. थोडं जरा मला तुमच्याशी ठीक आहे. पुढे बोलावं लागेल आणि मग मी ते तुम्हाला सांगते. ठीक आहे माताजी. हो. ठीक आहे माताजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरी बोल. हरे कृष्ण. Nishita, you want to ask any question? Priyanka, you want to ask any question? Okay, fine. निशिता बोल रही नहीं. ओके फाइन. चैट में उसने बोल दिया है नहीं. ओके प्रभु जी, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ वेरी क्लियर पिक्चर आपने हमें दिया हुआ है कि हमें जो है पहले इनिशिएशन फॉर्म जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके भरना है और फिर टेम्पल प्रेसिडेंट से मेरी साइन, टेम्पल प्रेसिडेंट की साइन लेनी है. फिर आप हमें 20 क्वेश्चनर्स भी दे रहे हो पीडीएफ फाइल में. फिर माता जी, हम क्या करेंगे कि जो डिवोटीज इनिशिएशन का फॉर्म भरने वाले हैं ना, हाँ उनके साथ अलग से हम बैठ के वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और ये जो डिवोटीज है फिर खुद से आंसर करेंगे, फिर आप उसको ग्रेडिंग देंगे. दैट विल ओके. मोर बेटर. यस, राइट 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 राइट. डायरेक्ट अगर आंसर दे दिए माता जी, इट विल बी अ स्पून फीडिंग, एंड आई डोंट हाँ, वांट कि इस स्टेज पर स्पून फीडिंग हो, कि इनिशिएशन को आंसर अंदर से आना चाहिए. राइट राइट. फिर वो क्वेश्चनर आप भेज देना. फिर वो जो वो क्वेश्चनर भी वेबसाइट पे है, वो भी सब वेबसाइट वेबसाइट पे पे है. है. अच्छा, सब वेबसाइट पर ही है. अच्छा. ये सब वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो. 30 लेक्चर्स का क्वेश्चनर भी जो है वो भी वो वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है माता जी, मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप डिवोटीज के साथ शेयर कर शेयर सकते हैं. कर सकते हैं. ओके. मतलब उसमें वो इतना परफेक्ट है, वो जो प्लेलिस्ट है. हम्म. मैंने वो प्लेलिस्ट 3 बार खत्म किया है, 30 लेक्चर का. हरी क्योंकि मैं हरी. थोड़ा इनसिक्योर ज्यादा था, क्योंकि वो हाँ, श्लोका जल्दी मेमोराइज होते नहीं है, मतलब जो राइट राइट टेक्निकल चीजें पूछी जाती है. राइट. और कभी कभी जो फॉर्म भरकर जो ईमेल आईडी पे देना है, तो वो वाला ईमेल आईडी भी ऑनलाइन पर ही है, वेबसाइट पर ही मिलेगा हम लोगों नहीं, को. वो वेबसाइट पे मेंशन किया है माता जी, बट मैं आपको पर्सनली टाइप फॉलो करके अप कर. हाँ. फॉलो अप करने के लिए. और एक नंबर है, मतलब 2 नंबर है. एक तो रेगुलर इंक्वायरी के लिए कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं, इंटरव्यू का क्या स्टेटस है. अगर उधर से हमको सफिशिएंट रिप्लाई नहीं मिलता है, तो फिर जेपीएस ऑफिस में जो सीनियर प्रभु जी है, हेड है, उनका नंबर भी निकाला है, तो हम उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं. वो सीनियर है तो हम उनको डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं, हम उनको व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं. वो विद इन 3-4 आवर्स हमें आंसर आ जाता है. ओ. तो उन्होंने ही क्या प्रोसीजर जल्दी करवाने में हेल्प किया था माता जी. ओ, हरी 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 हरी. देन ये बहुत अच्छा है. ये क्योंकि देखो ना प्रभु जी, अभी ये लोग बहुत मतलब 3-3 4-4 5-5 साल से है और हम्म, इनिशिएशन नहीं हो, तो मैं भी थोड़ा कंसर्न थी कि इनका हम्म. कैसे हो सकता है. ब्रजेश प्रभु, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? आपका हाथ ऊपर है. जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण. प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम. दंड कृष्ण. प्रणाम। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न है ना दीक्षा प्रोसेस से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं थोड़ा एम्बिग्यूटी में हूँ। मैंने हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज से इंस्पायर्ड हूँ, और उनकी वेबसाइट पे मैंने जाके कांटेक्ट किया है प्रभु जी से। और हम्म. मेरा जो फॉर्म था, फॉर्म मैंने टेम्पल अथॉरिटी से साइन करवा के भिजवाया था। बट दीक्षा एक्चुअली के मुझे, लिए. मैं क्या, 2 जगह से कनेक्टेड हूँ मैं। मतलब दिल्ली टेम्पल से बहुत पहले कनेक्ट हुआ था, है ना। हम्म. तो वहाँ के लेवल क्लासेस में लेता था बेस के थ्रू, तो मेरा फॉर्म एक्चुअली उधर से भी गया था। एंड मैं अभी कोटा में रहता हूँ राजस्थान में, तो प्रभु जी हाँ. यहाँ से भी मैंने फॉर्म भेज दिया। तो प्रभु जी, मैं जिससे पूछना चाह रहा था, इससे कुछ एम्बिग्यूटी बाद में क्रिएट तो नहीं होगी ऐसा कुछ? दोनों फॉर्म आपने एक ही जगह भेजे क्या, भक्ति आश्रम महाराज से दीक्षा लेने के नहीं लिए? प्रभु जी, क्या टेम्पल अलग अलग है ना, मतलब महाराज तो एक ही हाँ, ओके. है ना, बट वो दो हाँ. दो जगह से फॉर्म मेरा चला गया है। नहीं, कोई जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है प्रभु जी. जो सेक्रेटरी होंगे इनिशिएशन के महाराज के, आप उनसे अपना कंसर्न बता सकते हैं कि हम पहले इधर थे तो वहां से भी भेजा था, अभी इधर थे तो यहाँ से भी भेज दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रभु जी. प्रभु जी, हाँ. ब्रजेश प्रभु, मैं ना आपको एक नंबर देती हूँ.
जी माता जी। भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज की जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना, वो जी जी। उनका नंबर मेरे पास है। आपको वो नंबर मैं शेयर करती हूँ, आप उनसे प्रभु जी बात कर लीजिएगा, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि अभी महाराज है ना, देंगे इनिशिएशन देंगे कार्तिक में, तो जी कार्तिक में माता जी। वृंदावन में भी हो सकता है आपकी हो जाए दीक्षा प्रभु जी। ठीक है ना, जी माता जी। क्योंकि माता महाराज। जी मेरा, वो एक्चुअली मेरा नंबर है मेरे पास में, उन सेक्रेटरी प्रभु के नंबर मुझे, शायद अर्पित प्रभु था पहले उनका नाम, अच्युत गौरांग प्रभु जी की बात कर रहे हैं आप माता जी? नहीं प्रभु जी, एक अभी जो लेटेस्ट है ना, वो उनकी बात कर रही हूँ मैं प्रभु जी। जी माता जी, मैं कर लूंगा एक बात बात। मतलब मेरा एक्चुअली वही है, मैं महाराज से मेरी मीटिंग है ना, मुझे कोटा टेम्पल के हमारे अथॉरिटीज ने करवाई थी। तो मैं थोड़ा इधर से इंक्लाइंड हूँ, बट मैं बहुत पहले से दिल्ली टेम्पल से कनेक्टेड था। तो हाँ वहाँ के थ्रू भी मेरा प्रोसेस हो गया, तो मैं थोड़ा सा ये, मतलब किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता, एंड जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई दिस थिंग्स। हाँ हाँ। नहीं एक्चुअली दिल्ली टेम्पल वाले इतना बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी आप तो कोटा में सेटल्ड हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपके पास ऑलरेडी कोटा टेम्पल का सपोर्ट भी है और रिकमेंडेशन लेटर भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी प्रभु जी आपको। ठीक है ना। थैंक यू और माता कुछ हुई तो आप मुझे अप्रोच करो, मैं डायरेक्टली आपकी महाराज जी से बात करवा देती हूँ। जी। थैंक ठीक यू है माता जी, थैंक ना। यू, थैंक यू, थैंक यू। या, हरे कृष्णा, हरि बोल हरे प्रभु। कृष्ण माता जी, प्रणाम। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है। हर्ष प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना अच्छा गाइडेंस दिया है। और कुछ भी अगर मटेरियल है आपके पास तो आप मुझे ज़रूर फॉरवर्ड कर यस लेना। माता जी, तो मुझे पीडीएफ बनाना पड़ेगा उसका। हाँ, तो आप मुझे फॉरवर्ड करके, मतलब पीडीएफ बना के फॉरवर्ड कर जो दीजिए। जो डिवोटीज पर्टिकुलरली हिज होलीनेस जयपाताका स्वामी गुरु महाराज से एस्पायरिंग या शेल्टर कर रहे हैं, उनके लिए हम एक अलग से कम्युनिकेशन रखेंगे, क्योंकि वो जो 20 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे जूम मीटिंग में। फिर डिवोटीज उसका आंसर दे उसका एक देंगी। अलग ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ मैं। हाँ, बना लीजिए माता जी, कोई अभी प्रॉब्लम जी नहीं। फिर वो सिर्फ कम्युनिकेशन होने की मतलब ये हो जाएगा फिर, यस यस यस। है ना। और अगर जैसा आपने कहा कि ड्यूटीज ने शेल्टर का फॉर्म भी फिलअप किया है, हम्म। हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ राधाष्टमी है 31 अगस्त को। हाँ तो मतलब साल में कभी दीक्षा मिले या ना मिले, राधाष्टमी को 1001% दीक्षा सेरेमनी मायापुर में होता है। और हाँ। हमको अगर हम अभी अभी ये प्रोसेस इनिशिएट करेंगे तो 30-35 डेज लगता है उसको। मुझे 40 दिन लगा था। और देखिए प्रभु जी, राधा अष्टमी कितना पवित्र दिन है। आप देखिए, व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर, है ना। यस माता जी। हम्म। एक्चुअली जो इनिशिएशन सेरेमनी होने वाला था मुंबई में, वो आज ही के दिन 15 जुलाई को ही शेड्यूल था, होने वाला था राधा रास बिहारी मंदिर में। लेकिन सबको पता है गुरु महाराज अपने हेल्थ रीजंस की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए। अभी मायापुर में रेस्ट कर रहे, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम्म। अभी शायद एज पर न्यूज फिलहाल तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा है। आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला है कि शायद 4 बार या 5 बार हफ्ते में डायलिसिस हो उनका। तो भक्तों को पता नहीं एक्चुअली डायलिसिस इतना ऐसा प्रोसीजर है, क्योंकि मेरी नानी को डायलिसिस था, मीन्स हम लोग डायलिसिस करवाते थे, उनको 10 साल तक डायलिसिस पे रखे थे। जब मेरी नानी एक बार डायलिसिस करती थी ना, वो कम्प्लीटली 3 डेज के लिए फ्लैट हो जाती थी। मतलब कोई काम नहीं कर सकते आप, बिल्कुल अधमरे हो जाते हो, हाफ डेड यू कैन से। यू कैन नॉट गेट अप, यू कैन नॉट डी। सोचिए कि परम जो जयपता का स्वामी महाराज जो है, वो डायलिसिस पे, तो उनकी क्या हालत हुई। हालांकि शुद्ध भक्त तो जो है वो शरीर से भी परे होते हैं, इनको मतलब वो आत्मा के स्तर पर होते हैं, शरीर के स्तर पर नहीं। लेकिन फिर भी उस शरीर को तो वेदना भोगनी ही पड़ती है। और वो वेदनाएं किसको, किसकी वजह से भोगनी पड़ती, हम जैसे शिष्यों की वजह से भोगनी पड़ती, कि सारे पाप दीक्षा के वक्त जो है हमारे पिछले बहुत जन्मों के पाप जो है गुरु महाराज लेते हैं हमारे। और इसलिए फिर बार बार इनको इन तकलीफों से या शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो माता जी, जैसा आपने अपनी नानी का एग्जांपल शेयर किया डायलिसिस का, कि 3 दिन तक वो कुछ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन जो डिवोटीज गुरु महाराज से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते रहते हैं या अपडेट देखते रहते हैं, तो गुरु महाराज जब डायलिसिस चालू होता है तो कभी चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे होते हैं, कभी भागवतम पढ़ रहे होते हैं। मैं अभी आज सुबह का ही अपडेट बता रहा हूँ। मैं अभी ऐप पे पढ़ा, गुरु महाराज के ऐप पे, कि जब डायलिसिस के लिए वो वेन्स से वो लाइंस कनेक्ट की जा रही थी, तो गुरु महाराज अपना भक्ति सार्वभौम का जो असाइनमेंट है उसके लिए मध्य लीला से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे थे, कि मैं कौन से क्वेश्चन का आंसर करूंगा। एक सेक्रेटरी उनको सब बता रहे थे और गुरु महाराज बता रहे थे कि आई विल सिलेक्ट दिस क्वेश्चन, आई विल सिलेक्ट दिस क्वेश्चन। तो गुरु महाराज बोले, बीच में ही वो आंख का मतलब आय का डॉक्टर आ गया, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। आई वॉज
टेकिंग क्वेश्चंस फॉर माय मध्य लीला भक्ति सार्वभौम असाइनमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए। तो आँख का डॉक्टर आया, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, उसने मुझे चेक किया। उसके जाने के बाद मैंने फिर से मेरा काम कंटिन्यू किया, और साइड बाय साइड डायलिसिस चल रहा था। सो दिस इज समथिंग अमेजिंग माता जी। Yes, only actually one who is not on bodily platform, who is on soul, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा स्टेट पर ही कर सकते हैं। वरना हम जैसे बद्ध जीव जो है, वी आर नित्य बद्ध है ना, तो हम लोग तो एकदम फ्लैट हो जाते हैं। अभी हमारे एक और भक्त है, उनको भी डायलिसिस होता है, तो मुझे बता रहे थे कि माता जी डायलिसिस जब करूँ मैं 3 दिन तक बहुत मुश्किल होता है मुझे, मतलब मैं भी अधमरा सा ही हो जाता हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं, जैसे तैसे सिर्फ लेटे लेटे अपनी माला कर लेता हूँ। तो आप सोचिए क्या महाराज का स्तर है कि वाइल डायलिसिस इज गोइंग ऑन, विच इज अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर है, इतना दर्दनाक वो प्रोसीजर है, और महाराज जो है वो मध्य लीला के जो है वो आंसर्स ढूंढ रहे हैं और श्रवण हम कर रहे हैं चैतन्य चैतामृत का। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू प्रभु जी, आपने शेयर और किया। माता जी एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। अभी जनरली क्या होता है, मतलब मैं मेरे जैसे स्ट्रगलिंग साधक की उनकी कहानी बताता हूँ कि कभी कभी हम हमारे वर्क के लिए जाते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, सुबह जल्दी जाना होता है, शाम को कभी कभी लेट हो जाता है। तो हम कभी कभी हमारे माला करने में भी वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और कभी कभी हम सबसे मेन चीज हो जाए प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन आप गुरु महाराज का ग्लोरीज देखिए कि डायलिसिस होने के बाद जैसे ही आएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी मुंबई में गुरु महाराज जीबीसी मीटिंग के लिए आने वाले थे, तो क्या किए, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, डायलिसिस चल रहा है, इन्फेक्शन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन डायलिसिस चल रहा है एंड गुरु महाराज इज आंसरिंग टू जीबीसी क्वेश्चंस। ही वाज लाइव, ही वाज लाइव देयर, वो लाइव वो प्रेजेंट थे। और डायलिसिस के बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं, और वो जो मेडिकेशन और प्रसाद वगैरह लेना है वो लेते हैं, थोड़ा नैप लेते हैं। शाम को उठेंगे, फिर सेक्रेटरी को बोलेंगे यू रीड दिस बुक फॉर मी। हम्म अभी उनको शिला प्रभुपाद की किसी प्रिय शिष्य ने कहा था कि यू रीड दिस बुक। हम्म तो गुरु महाराज ने नेक्स्ट दिन से स्टार्ट कर दिया। हालांकि गुरु महाराज मूर्तिमंत तो उसके उदाहरण है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये जो बुक है प्रभुपाद का, प्रभुपाद ने हमें दिया है, तो गुरु महाराज ने वो पढ़ना शुरू कर दिया। हरी हरी। और शिला प्रभुपाद के एक प्रिय शिष्य ने द गोल्डन अवतार करके एक बुक लिखा है, गुरु महाराज के एक गुरु बंधु है। तो जब वो गुरु महाराज से मिलने आए थे, उन्होंने गुरु महाराज को वो बुक गिफ्ट किया। तो गुरु महाराज ने बोला ओके, आई विल रीड दिस बुक फॉर श्योर। अगर आप ऐप में अपडेट देखोगे तो गुरु महाराज रेगुलर बेसिस पे वो बुक अभी भी पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। हरी। और गुरु महाराज कहते हैं कि शिल प्रभुपाद ने मुझे कहा था कि 16 माला का जप करना, 4 नियम, और मेरी किताबें पढ़ना। तो वो आज भी कर रहे हैं। माता जी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है गुरु महाराज का फिलहाल। और आगे एज पर अपडेट बढ़ने वाला है, 4 या 5 दिन होगा 7 दिन में से। ओ नो। स्टिल ही वॉन्ट्स टू प्रीच अनलिमिटेडली। तो ये सब देखकर एक ही भाव आता है कि जो चीजें हमारे हाथ में है, जैसे कि 16 माला ईमानदारी से करना अटेंटिवली। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज भी इसी चीज पे फोकस करते गए थे कि कुछ करो ना करो, 16 हमारी माला अटेंटिवली होनी चाहिए, प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए। इवन बिफोर रीडिंग माई बुक यू शुड रीड शिला प्रभुपाद बुक, ये है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहा करते थे कि हम प्रभुपाद की बुक में फोकस करना है। माता जी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। 2022 में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जुहू मंदिर आए थे, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके दर्शन का। तो महाराज जी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि आर यू रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक सीरियसली। तो एट दैट टाइम मेरा सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं था। यस महाराज रीडिंग। तो महाराज ने जो स्टेटमेंट कहा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैं मेरे जैसा नियोफाइट साधक हो या जो इस्कॉन में 30-40 साल हो गए, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो महाराज जी का स्टेटमेंट मैं एज इट इज कोट कर रहा हूँ। महाराज जी बोले by being in ISKCON, if you are not reading Srila Prabhupada books, then you are doing spiritual suicide. If by being ओके। in ISKCON, if you are not reading Srila Prabhupada books, you are doing spiritual suicide, ये महाराज जी ने कहा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हमें प्रभुपाद की बुक्स कितनी सीरियसली पढ़नी है। तो हमारे आचार्यों ने बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड हमारे लिए सेट किया है। तो एटलीस्ट हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिनकी वजह से प्रभुपाद की आंखों में या हमारे गुरु महाराज की आंखों में आंसू आए, या उनको
मटेरियल मतलब बॉडीली लेवल पे, क्योंकि गुरु शिष्य का कर्मा ले लेता है इनिशिएशन के समय। तो हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद सफर करे और हमारे ऐसे किसी आचरण की वजह से एस्कॉन का नाम खराब ना हो, हमारे गुरु का नाम खराब ना हो, और अल्टीमेटली शिला प्रभुपाद का नाम खराब ना हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी कलयुग बहुत एडवांस कर रहा है। जैसे भक्त एडवांस कर रहे हैं वैसा कलयुग भी एडवांस कर रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम शिला प्रभुपाद की बुक्स अटेंटिवली पढ़ेंगे, 16 माला ईमानदारी से करेंगे, हमारे अथॉरिटीज को फेथफुल रहेंगे, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ फॉल डाउन एंड डाइवर्जन फ्रॉम द कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी। एंड प्रभुपाद ने बहुत जगह कहा है, बहुत बार कहा है अपने क्लासेस में कि कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी इज द टॉप मोस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड। मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं, दिस इज द टॉप मोस्ट फिलोसॉफी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आवर आचार्य। जैसे अ, आप सभी ने वीडियो देखा ही होगा कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नींद में भी विग्रह सेवा कर रहे थे। तो हमारे आचार्य ने बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड हमको दिया है। हम उतना ऊंचा तो नहीं जा पाएंगे, हम कंडीशन सोल है। तो एटलीस्ट हम कुछ प्रयास करें ताकि हम गुरु महाराज को, प्रभुपाद को प्रसन्न कर सके। माता जी। या प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितना बढ़िया बताया आपने, थैंक यू, थैंक यू। तो हर्ष प्रभु, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छा लाइट थ्रो किया है। मैंने इंस्टेंट एक ग्रुप भी बना दिया है और मेंबर्स को ऐड कर दिया है, तो आई थिंक हम लोग वहीं से उठाएंगे। और किसी को अगर कोई प्रश्न है पर्सनली तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान दिया जाएगा। सो प्रभु जी, वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू हर्ष प्रभु। उन्होंने थैंक बहुत अपना मूल्यवान समय निकाल कर जो है हमें जो है एनलाइटन किया हुआ है। और अभी हम सभी लोग तैयार है दीक्षा के लिए। हरे कृष्णा, यू। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।